Good morning and I welcome you students. Here we are discussing some important carbon compounds. Carbon forms very large number of compounds, but the two important compounds which are in our course, very important for exams are ethanol and ethanoic acid. So if I have to write the structure of ethanol, how will I write the structure of ethanol, students? How many carbons are there in ethane? How many carbons? Eth means two carbon. ठीक है, 1 and 2 carbon. How we write 1 2 carbon? And OL means what is the functional group? What is the functional group? OH. OH. Now balance the four valencies of the carbon. How will you say 1 2 3 4? ठीक है, 1 2 3 4. This is our ethanol, and in the books you will find what they write, condensed form of this. This is the ethanol formula. Is it right? Tell me any doubt in this formula, because it can be asked in the paper. Is it clear? The formula of ethanol? Yes, sir. So if I have to write the second formula, students, what is that compound? Ethanoic acid. How will I write the formula of ethanoic acid? What is the functional group of ethanoic acid? C. This is the functional group, carboxylic acids. When we studied the carboxylic acid, the OIC, oic acid, comes from this, and the short form of this is the condensed form of this COH. And what the suffix used is oic acid. And ethane means how many carbons will be there? 2 carbons. One of the carbon is this. If I write it like this, students, this is carbon valency is balanced 1 2 3 4 bonds. Then you have to balance the valency of carbon 4. So what will be the formula of this? CH3 COOH. So this is the short form, condensed form of ethanoic acid. Clear? These two formulas are important as they are used in the NCERT book. They will be asked in the paper also. How we write the formula and what are the IUPAC name, we already told you. These are the two important compounds of the carbon which are in our course. You are aware of ethanol? Do you know any information? Alcohol, you have heard about alcohols? You know alcohols, people are taking alcohols, you have heard about that. Though it is unhealthy and dangerous, but ethanol is used in alcoholic drinks. Alcoholic drinks में कौन सा use होता है? Ethanol. Ethanol is a, ठीक है, ethanol is commonly called alcohol and is used in alcoholic drinks. तो alcoholic drinks में ये use होता है, लेकिन very small percentage is used. If I use very pure form of that, what will happen? Then it will be lethal, and it will be, we cannot use very pure forms are very toxic, lethal, and can cause severe health problems. Even those people who are drinking alcohol, you know, it is a serious health issue. They are, alcoholic drinks are not good for health. We already know that they are unhealthy. Already it is known to all of us. So let us see the two important compounds. Properties of ethanol. What are the properties of ethanol? Ethanol is a IUPAC name. This is the IUPAC name of the compound CH3CH2OH. ठीक है? Common name of ethanol is ethyl alcohol. Common name, ethyl alcohol. It is usually simply alcohol because it is used in alcoholic drinks. Pure alcohol is called, known as absolute alcohol. When I say absolute alcohol, that will be pure alcohol. So this even small quantities of this, even small quantities of pure alcohol, quantities of
absolute alcohol can be lethal for your health. So this is not very, very serious matter. We cannot take it. So can be lethal. Cannot consume the absolute alcohol. In the alcoholic drinks, you will find how much percentage, 3%, 2%, 4%. All these are there. And what happens when people take alcoholic drinks? They feel very comfortable in the mind, or what they say, some drowsiness is there in the mind. So then what happens, that your mind looks very relaxed or something like this. So this alcohol in the pure form is lethal. Some of the physical properties of alcohol. At first, it is volatile and colorless liquid. Ethanol is a liquid. What do you mean by volatile liquid? Volatile means it will readily evaporate. It has a lower boiling point. As soon as you will put it on your palm, it will evaporate. So these are called volatile liquids. It is a liquid. It is in the form of liquid and volatile. And is liquid at room temperature. At room temperature, it is existing in the liquid form. Ethanol has a pleasant smell. Smell is pleasant. The melting point of ethanol is -114 and boiling point is 78.37. Ethanol is soluble in water in all proportions. Important point that ethanol dissolves in water. You have seen alcoholic drinks, alcohol, they put in plain water, which is soluble. It dissolves in the water in all proportions, The reason of dissolution is hydrogen bonding. It forms hydrogen bonds with water and therefore it becomes soluble. And you will learn more about this in the next chemistry classes. When you go to higher classes, you will see. Another important point to note is ethanol is a very good solvent. What do you mean by solvent? You already know water is a good solvent. So when water is a good solvent, what we are doing? We are eating our food, we are drinking water, we are seeing most of the substances dissolve in water. And then the process of metabolism is taking place inside the body. Large number of substances we are eating. Water is used as a solvent. Now alcohol is also used as a solvent. As it is a good solvent. We are saying it is a good solvent. You know, a lot of medicines you are using. Lot of compounds or medicines, they are dissolved in alcohol. So they become, because it is a good solvent. So a lot of medicines, they are dissolved in water. You have seen a lot of cough syrups. People who are having throat problem, cough, what happens? You have cough syrup. Have you used cough syrup? Many times you may have used it. कभी खांसी जुकाम होता है, वो सिरप सा आता है ना, तो उसमें एक सॉल्वेंट सा यूज होता है. जो भी मेडिसिन है, that is dissolved in a solvent. Alcohol is also used as a solvent. और एक आपको पता है tincture of iodine. What is tincture of iodine? In your school medical room, students, you have a school medical room. जो इंजरीज हो जाती हैं बच्चों की छोटी मोटी, क्या होती हैं इंजरीज, वुंड्स, कट्स लग जाते हैं स्टूडेंट्स को. तो उसके अंदर क्या होता है कि व्हेन यू गो टू द मेडिकल रूम, दे हैव ए सोल्यूशन. एक सोल्यूशन सा होता है वायलेट सा कलर का. वो क्या करते हैं, कॉटन से आपके वुंड्स पे लगा देते हैं. What they do? They will put tincture of iodine on the wounds. Iodine is antiseptic.
ये क्या होती है? आयोडीन एंटीसेप्टिक का काम करती है. So we apply on the wounds. What will happen to the alcohol? It will evaporate. So iodine is dissolved in tincture of iodine. Iodine is dissolved in alcohol. That becomes a solution that is applied to the wounds. And what will happen when you apply to the wound? आपको थोड़ी जलन सी होती है. देखा कई बार कट्स लगते हैं, वो solution ऐसे लगाते हैं, जलन सी होती है, violet color का होता है. तो alcohol will evaporate. Iodine acts as an antiseptic. So alcohol has been used as a solvent in many paints. You have got paints done at your home, you will find there is a smell of alcohol, and it can be used as a solvent. A lot of paints are dissolved in it, and then they paint the doors, iron doors, जो भी आप करवाते हैं. So this becomes also lot of paints में क्या होता है, dyes होती हैं different colors की, different colored dyes are dissolved in alcohol. Dyes dissolved in alcohol का smell आता रहता है. तो इस तरह से भी बनते हैं. Other solvents are also there, but here we are talking of ethanol. तो हमें समझ में आई, ethanol is highly soluble in water, and consumption of small quantities of dilute is what we call as a drunkenness. ठीक है, drunkenness practice, it is not a healthy practice, and it is not good for health, but people are used to taking it, and a lot of people drink alcohol. This is totally unhealthy because it's a chemical, it is ethanol, and it should not be consumed. Coming to the chemical properties of the ethanol. Chemical properties of ethanol, formula हमने लिखा students, CH3 CH2OH. This is our ethanol, 1 and 2 carbons, and the functional group is OH. Here is an activity, students. What do they say? Drop a small piece of sodium about the size of a couple of grains of rice into ethanol. Just take a test tube. You have ethanol. इसका और भी, this is my ethanol, student. हमने क्या किया, इसके ऊपर एक small size of grain size, बहुत छोटा सा size का ड्रॉप कर दिया. इसके अंदर क्या डाला है? सोडियम piece. Remember, sodium is a very reactive metal. Sodium is a very reactive metal. It has to be handled with care because it catches fire in the atmosphere. What will happen as soon as you put sodium in it? You will observe a gas evolution. Bubbles of gas will be formed. Can you tell me what bubbles will be there, students? क्या निकल रही है? Gas के bubbles. Can you tell which bubbles of the gas will be there? कौन से bubbles निकलेंगे gas के? You have any idea? Sodium is added. Sodium is a metal, and this is our alcohol. Which gas will be evolved, students? Do you have any idea? Hydrogen gas is evolved. Sir, hydrogen gas. Very good, Anya, very good answer. Hydrogen gas will be evolved. Do you know how to test hydrogen gas? How to test? Yes, sir, it burns with a pop sound. Yes, very good answer given by Anya. You already know this, we did in the chemical reaction and equation. So how to test hydrogen gas? It burns with a pop sound. वेरी गुड. तो अगर हम इस पे मैच स्टिक जो होती है हमारी, मैच स्टिक या कैंडल, ठीक है, मैच स्टिक और कैंडल, स्टूडेंट्स, देन व्हाट विल हैपन टू दीज बबल्स? तो ये क्या करेंगे? पॉप साउंड से बर्न कर देंगे. देन वी नो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, स्टूडेंट्स. So if we are to balance this reaction, students, how do you balance the reaction? You have CH3, CH2OH. This is my liquid. You have sodium solid. You have added in this.
The result of this is hydrogen gas is evolved, and what is happening, that's this, there is a hydrogen, this hydrogen, you can see that this hydrogen is going to be removed from here by the sodium. So what you will get, CH3 CH2 ONA student, ये metal होता है, ये it removes hydrogen from here, तो hydrogen gas will be there. अब जो हाइड्रोजन गैस बन गई है, इसको बैलेंस करना है। देखो कितनी हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक, यहाँ पे दो है, तो लेट मी पुट इट 2, तो ये 2 हो गया, और फिर इफ ये 2 हो गया तो इफ आई वांट टू बैलेंस दिस आई हैव टू मेक इट 2. नाउ सोडियम इज 2, देन आई पुट्स 2, तो ये इक्वेशन कौन सी हो गई, बैलेंस्ड इक्वेशन. यू हैव लर्नड स्टूडेंट्स हाउ टू बैलेंस द इक्वेशंस. द नंबर ऑफ एटम्स on the left hand side should be equal to number of atoms on the right hand side. तो वो उसे क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन. ठीक है, तो यहां पर हमने ये बैलेंस्ड इक्वेशन. This compound is called sodium ethoxide. What is the name of this compound? Sodium ethoxide. ये सोडियम है, ये एथोक्साइड है, और ये सोडियम, ये एथेनॉल. This is my ethanol. This is my sodium. And sodium ethoxide. एक important है, question and reaction has been asked in the paper. You know what type of papers are coming. Paper will not be easy, students. The final CBSE board paper is never easy. It is having good standard, and this time the paper is descriptive. You have to read it very, very carefully and prepare your notes so that you can write in the paper. Because these marks will be important for you, they will be counted. तो फिर आप इसकी पूरी प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरह से नोट्स बना लो, एक एक वर्ड बाय वर्ड, वन ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी बी read very, very, very clearly. That is the reason I give activity also. You have seen lot of questions are asked from the activity. They'll ask you mix this, what gas is evolved, and write the equation. तो हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और गैस बतानी पड़ेगी कौन सी निकल रही है. You already know the first paper you have given how activities and diagrams are given, paragraphs are given, questions are asked on that. So we have to prepare, and we have to learn each and every word, each and every line written in NCERT book. I am trying to decode the NCERT completely and giving you extra more than the book, as well as going to solve many important questions which can be asked in the exam. ठीक है, यहां तक नोट हो गया, समझ में आ गया सारा. चलो फिर आगे चलते हैं. ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब सेकंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो क्या है, एथेनॉल की. अब सेकंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एथेनॉल स्टूडेंट्स, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. Can you tell me what are unsaturated hydrocarbons? पढ़ा था हमने, what are unsaturated hydrocarbons? जल्दी से बताइए, 30 सेकेंड से आपके पास. What are unsaturated hydrocarbons? Saturated और unsaturated दोनों डिस्कस कर चुके हैं. What are unsaturated? They contain. So they contain double or triple bond. Very good answer given by Ane. Carbon carbon double bond or carbon carbon triple bond. When we have, these are called, what is the name of these? Alkenes. Nomenclature will also be asked in the paper. What is this? Alkynes. तो यहाँ पे they have a double bond or a triple bond. इनको बोलते हैं unsaturated. तो रिएक्शन अल्कोहल की हो सकती है to give unsaturated hydrocarbon. मतलब यहाँ पे एल्कीन बन सकता है, कैसे बनता है वो देखना है. अब इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ो जरा ध्यान से. Very important, very important for the exam. This reaction has been asked many times in the previous year, students. Reaction to give unsaturated hydrocarbon. Heating ethanol at 443 Kelvin temperature with excess concentrated sulfuric acid results in the dehydration of ethanol to give ethene. तो आप देखो क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया कि ये अल्कोहल है, ठीक है. अब इसमें आपने क्या डाला है, हॉट
कंसंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर कितना है 443 केल्विन। तो क्या लिखा मैंने, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन स्टूडेंट्स, मतलब डिहाइड्रेशन अंडरस्टैंड करिए, नथिंग टू रिमेंबर, मगिंग नॉट मगिंग, कंसीडर, लर्न 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 विद मी, यू हैव टू लर्न ओनली, प्रैक्टिस लर्न प्रैक्टिस लर्न। डी का मतलब क्या होता है, लॉस। हाइड्रेट, हाइड्रेट क्या होता है, H2O, वाटर, लॉस ऑफ वाटर। तो लॉस ऑफ वाटर को हाइड्रेशन कहा जाता है, डिहाइड्रेशन कहा जाता है। डी का मतलब, हाइड्रेशन का मतलब वाटर, डिहाइड्रेशन मीन लॉस ऑफ वाटर। तो अगर लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, देखो यहाँ पर OH दिख रहा है तुम्हें, और एक हाइड्रोजन यहाँ से चली जाएगी, क्या होगा देखो, और ध्यान से देखते हैं, बहुत अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करो स्टूडेंट, ताकि वी शुड नॉट फॉरगेट इन द पेपर। देखो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, टेल मी इज दिस इज एथेनॉल, यस और नो, ये समझ में आया, बोलो, आ गया? Yes, sir. ये OH यहां लिखो या इधर लिखो, मेक्स नो डिफरेंस। अब वाटर कैसे निकलेगा इसमें से, ये देखो H2O बन गया, ये H2O बन गया, बोलो बना? Yes, तो sir. मैंने लिख दिया -H2O, इसे ही बोलते हैं डिहाइड्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। उसने क्वेश्चन ही पूछा था व्हाट इज डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मींस लॉस ऑफ वाटर। तो ये अगर निकल जाएगा तो ये सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, अब डबल बॉन्ड हो जाएगा, देख रहे हो, ये वाटर बाहर आ गया। अब क्या हुआ, ये H था स्टूडेंट्स, ये H था, यहाँ पर भी अब 2 H बचे हैं। और अगर मैं ये देखूं तो यहाँ कार्बन की कितनी है, 1 2, और यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। तो व्हाट इज दिस, इस कंपाउंड का नाम बताइए जल्दी से, कौन सा बन गया, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड स्टूडेंट्स? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, कितने कार्बन है, 2, और ये कौन सा है, एल्कीन। तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस, हाउ डू यू गिव IUPAC नेम, एथ और इन, बोलो सही है या गलत है, जल्दी बताओ, समझ में आ गया? हमने कितने कैसे बताए थे आपको नेम्स, एल्केन ANE वाले, एल्कीन सफिक्स इन, एल्काइन सफिक्स YNE, बोलो समझ में आ गया? IUPAC name, IUPAC. Yes, sir. I am trying to repeat it for you because there will be question on IUPAC name. If you have doubts, you can ask me, because we are going to do lot of question answer sessions for you, which are important question for the exam. तो हमें क्या मिल गया, इथीन मिल गया, बोलो सही है? तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। तो व्हाट इज द रोल ऑफ, इसने ये पूछा एग्जाम में, व्हाट इज द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, क्वेश्चन लाइक दिस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, बताइए क्या आंसर है आपका, आंसर बताइए इसका, क्वेश्चन आंसर, क्या आंसर है? You have 1 minute. Think, think, think. With me, learn, learn, learn. रट्टेबाजी नहीं करनी। What sulfuric acid is doing? Tell me. ये पानी निकाल रहा है यहां से, ये पानी को क्या कर लेता है, निकाल देता है बाहर। सल्फ्यूरिक एसिड, देन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या आप आंसर लिखेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, एक्ट्स एज, बोलो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसने क्या किया, वाटर को रिमूव कर दिया, वाटर को बाहर निकाल दिया अल्कोहल से, इसे क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नोट कर लो, ऐसे सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। व्हाट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मींस इट रिमूव्स वाटर, ये क्या करता है, रिमूव्स वाटर। तो इसने वाटर को रिमूव कर दिया, अल्कोहल में से वाटर को रिमूव कर दिया, तो व्हाट इज दिस, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। समझ में आया रिएक्शन, बोलो समझ में आई? Yes, sir. नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है ये, दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम।
ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले पेपर में। अब ये क्वेश्चन आ गया था कि हाउ डू अल्कोहल्स अफेक्ट द लिविंग बींग्स। अब प्रॉब्लम क्या है कि अल्कोहल एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोग पीते हैं, यू नो, लॉट ऑफ पीपल लव टू ड्रिंक अल्कोहल बिकॉज देन इट गिव्स देम वेरी गुड फीलिंग इन द माइंड। वो थोड़ा ड्रॉजीनेस हो जाती है माइंड में और उन्हें बहुत मस्ती आती है, मस्त हो जाते हैं। तो वो बहुत ड्रिंकेड लोग जो होते हैं बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर इफेक्ट्स आर नॉट गुड। तो ये क्या करता है फिर, लिविंग बींग्स जो है ऑल ओवर दी वर्ल्ड लोग इसको बहुत पीते हैं। व्हेन लार्ज quantities of ethanol are consumed, when large quantities of ethanol are consumed, it tends to slow metabolic processes. तो अगर आप अल्कोहल लेंगे, ठीक है, ज्यादा पिएंगे, मतलब थोड़े से कुछ नहीं होता, ड्रिंक करेंगे मोर, तो क्या होगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो जाएगी। तो व्हाट इज द मेटाबॉलिक प्रोसेस, क्या होती है, जल्दी से बताओ। एक एक वर्ड को समझना है, वर्ड को समझना है, बस याद नहीं करना, समझना है। व्हाट इज द मेटाबॉलिक प्रोसेस? जो भी आपका फूड आप खाते हैं उसमें मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है, फूड इज गेटिंग डाइजेस्टेड, वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो आगे इफ दिस बिकम स्लो, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दैट? तो आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो जाएगा। और दूसरा क्या है, जो ये डिप्रेस करता है आपके नर्वस सिस्टम को, डिप्रेस इज द नर्वस सिस्टम। यू हैव रेड दैट यू हैव ए नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या करता है, आपके सारे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो नर्वस सिस्टम अगर डिप्रेस हो जाएगा तो क्या होगा, दिस रिजल्ट्स इन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मेंटल कंफ्यूजन। तो इससे मेंटल कंफ्यूजन, ड्रॉजीनेस, लोअरिंग ऑफ नॉर्मल इनहिबिशन एंड फाइनली स्टूपर। तो नर्वस सिस्टम डाउन हो गया, क्या हो गया, आपका नर्वस सिस्टम डाउन हो गया, नीचे आ गया। तो माइंड तो फिर ड्रॉजीनेस स्टेट में आ गया, ठीक है। और उसी को ही हम रिलैक्सेशन कहते हैं जी। तो यू फील, कैसी फीलिंग आएगी, आप फील करते हो रिलैक्स्ड हो गए भाई। सारी माइंड के अंदर जो थिंकिंग प्रोसेस थी, जो भी सोच रहे थे, वो डिप्रेस हो गया सर। तो यू कल पीने वाले ये सोचते हैं हो बहुत मजा आ गया, माइंड बस रिलैक्स हो गया। आपने, यू हैव सीन एंड एक्सपीरियंस्ड व्हेन पीपल ड्रिंक, बस फिर वो बोलते ही रहते हैं। कुछ लोग देखा तुमने, वो बस अपना बोलते रहते हैं, मस्त, उन्हें कुछ पता नहीं वर्ड का। हैव यू सीन इट? टेल मी। उन्हें बहुत मजा आता है, रिलैक्स हो जाते हैं, बहुत कुछ भी बोलते हैं, और कुछ खाते हैं तो खाते ही रहते हैं। हैव यू एक्सपीरियंस्ड पार्टीज वेयर दीज पीपल आर ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ लिकर, एथेनॉल ड्रिंक करते हैं। तो वो टाइम बिंग के लिए बहुत मजा होता है, इसलिए वो उसको रिलैक्स फील करते हैं। दे मे फील रिलैक्स्ड विदाउट रियलाइजिंग हिज सेंस ऑफ जजमेंट, सेंस ऑफ टाइमिंग एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हैज बीन सीरियसली इम्पेयर्ड। और भी ये भी देखा होगा कि जो ओवर ड्रिंक कर जाते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे ही सड़कों पे गिर भी जाते हैं। आपने देखे ड्रंकेड पर्सन ऐसे वॉक करते हुए कभी सड़क रोड्स पे, ऐसे लगता कि ये गिर ही जाएगा। तो वो क्या हुआ, उसका कोऑर्डिनेशन, जो नर्वस सिस्टम है, अब वो बिल्कुल डाउन हो गया है। नर्वस सिस्टम इज द कोऑर्डिनेशन सिस्टम, कंट्रोल करता है बॉडी को, वो सब खत्म हो गया धीरे धीरे, ज्यादा पी लिए तो बस फिर उसकी बॉडी ऐसे ही होती है। तो वो इम्पेयर्ड हो जाता है, सेंस ऑफ टाइमिंग, मस्कुलर, ये सारा जजमेंट भी नहीं कर पाता। तो इस तरह से जो इस स्टेट में भी आ जाते हैं लोग कि वो सड़क पे गिर सकते हैं। अनलाइक एथेनॉल, अब देखो अनलाइक एथेनॉल जो ड्रिंक्स में यूज होता है, जो अल्कोहल है उस वो कौन सा है, एथेनॉल। दैट फार्मूला इज CH3CH2OH। ये हम जो ड्रिंक्स में यूज करते हैं स्मॉल परसेंटेज, 2% और 3%। एब्सोल्यूट जो होगा प्योर, वो लिथल होगा। अगर मेथनॉल की स्मॉल क्वांटिटीज जो होती हैं वो डेथ कॉज कर सकती हैं। दूसरा अल्कोहल कौन सा, मैथनॉल। मैथनॉल, व्हाट इज द फार्मूला मैथनॉल, जल्दी से बताइए मैथनॉल का फार्मूला। कैन यू टेल मी द फार्मूला मैथनॉल? हाउ मेनी कार्बन्स विल बी देयर? बोलो कितने कार्बन होंगे, 1। तो ये CH3OH है। ये पॉइजन होता है स्टूडेंट्स। मैथनॉल इन स्मॉल क्वांटिटीज कैन कॉज डेथ। दिस
This is very poisonous, and small quantities can cause death. आपने कई बार सुना है कि वो गंदी शराब पी के लोग मर गए. Have you listened such cases? Sometimes people are dying bad liquor बढ़ते से. Or if methanol instead of ethanol is added, what will happen? People will die. Chemical compounds are very strong poisons. Just changing from ethanol to methanol, you can drink it and die. What is the reason? What is the reason? Methanol is oxidized to methanol in the river. देखो methanol का फार्मूला, अब इसका फार्मूला क्या है समझिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया था पेपर में. ये मेथनॉल है, अगर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. अगर मैंने इसमें ऑक्सीजन को ऐड कर दिया स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन जाता है? ये बनाता है HC डबल बॉन्ड OH. तो ये क्या बन गया? ये है मेथनोइक एसिड. लेकिन इससे पहले जो बनेगा वो बता दूं थोड़ा सा. क्या बना है? बोर्ड स्टूडेंट, इससे पहले क्या बनेगा? एल्डिहाइड. यहां पे क्या बना स्टूडेंट्स? मैथनल. ये दिस इज मैथनॉल, मैथनल बना. ये Al वाला क्या होता है स्टूडेंट? इसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड. ठीक है, तो आपके पास एल्डिहाइड बन गया. ये कौन सा है? एल्डिहाइड. दिस इज द फंक्शनल ग्रुप हियर इज एल्डिहाइड. इसका फार्मूला क्या होगा? HCHO. ये CHO वाला एल्डिहाइड होता है स्टूडेंट. तो ये मेथनॉल लीवर के अंदर जब बन जाएगा स्टूडेंट, इन द लीवर, दिस इज अ पॉइजन. मेथनॉल रिएक्ट्स रैपिडली विद कंपोनेंट्स ऑफ द सेल. तो ये कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स के साथ रिएक्ट कर जाता है. किसके साथ? इट विल रिएक्ट विद कंपोनेंट्स ऑफ द सेल. इट विल रिएक्ट विद कंपोनेंट्स ऑफ आवर सेल इन द बॉडी. ठीक है, एंड इट कोएगुलेट्स द प्रोटोप्लाज्म. तो ये कोएगुलेट कर देगा प्रोटोप्लाज्म को. कोएगुलेट कर दिया इसने. किसको? प्रोटोप्लाज्म को. हमने पढ़ा था प्रोटोप्लाज्म, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. प्रोटोप्लाज्म को कोएगुलेट कर देगा. तो ये क्या होगा फिर? इन मच द सेम वे, जैसे कि अंडा जो होता है कोएगुलेट होता है बाय कुकिंग. जब अंडे को बॉयल करते हो तो उसे कोएगुलेशन हो जाती है. तो मेथनॉल देन आल्सो अफेक्ट द ऑप्टिक नर्व काजिंग ब्लाइंडनेस. तो ये ऑप्टिक नर्व को भी अफेक्ट करता है, ब्लाइंडनेस. तो ये इसके कारण क्या होता है? ये पॉइजन है. ठीक है, ये पॉइजन है, तो इसलिए ये डेथ कॉज कर सकता है. कौन सा? मेथनॉल. ये पॉइजन है. दिस इज नेवर यूज्ड इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स. व्हाट इज यूज्ड इन अल्कोहलिक ड्रिंक इज एथेनॉल. तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स में कौन सा हम यूज करते हैं? ये वाला एथेनॉल. दिस इज अ पॉइजन बिकॉज इन द लीवर ये क्या होगा? ये फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ऑक्सीडाइज का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी. तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बन गया और ये लीवर में क्या करेगा? कंपोनेंट्स ऑफ द सेल से रिएक्ट कर जाएगा एंड कोएगुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म विल टेक्स प्लेस एंड दिस कैन कॉज डेथ. जैसे कि अंडा कोएगुलेट होता है. तो मेथनॉल आल्सो रिएक्ट्स अफेक्ट्स द ऑप्टिक नर्व. तो ये ऑप्टिक नर्व से भी, ऑप्टिक नर्व होती है हमारी एक, अगर उस पे ये इसने रिएक्ट कर दिया, अफेक्ट कर दिया, तो ब्लाइंडनेस हो जाएगी. क्या हो जाएगी? ब्लाइंडनेस. तो ब्लाइंडनेस हो जाएगी. तो कौन सा? ये तो यूज ही नहीं कर सकते मेथनॉल. इट इज अ पॉइजन. तो एथेनॉल इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट. जैसे मैंने बताया था कि एथेनॉल का जो यूज है वो बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ द सॉल्वेंट. टू प्रिवेंट मिस यूज ऑफ एथेनॉल. तो एथेनॉल का बहुत ज्यादा मिस यूज होता है क्योंकि शुगर इंडस्ट्रीज में एथेनॉल बनता है तो वो लोग पी जाएंगे फिर, क्योंकि वो अल्कोहलिक ड्रिंक है. इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग पॉइजनस सब्सटेंसेस like methanol to it. Dyes are also added to color
the alcohol blue so that it can be identified. This is called denatured alcohol. अब ये क्वेश्चन पूछा था what is denatured alcohol. Another question आ गया, what is denatured alcohol? What is your answer? What is denatured alcohol, students? मतलब क्या हुआ कि जो ethanol है, it will be made unfit for drinking by adding certain poisonous substances or adding certain color to the alcohol. तो वो इसमें क्या करते हैं, एथेनॉल में थोड़ा मेथनॉल मिला दिया तो पॉइजन बन गई, तब कोई भी नहीं पिएगा बिकॉज मेथनॉल इज अ पॉइजन. और इसके अंदर कुछ ब्लू कलर डाल दिया तो अब ब्लू कलर हो गया तो फिर कोई भी नहीं पिएगा. तो इस तरह से अल्कोहल को, एथेनॉल को अनफिट कर देते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस बाय एडिंग सर्टेन सब्सटेंसेस इन इट. दैट इज कॉल्ड डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल. डीनेचर कर देते हैं, इसकी नेचर को खराब कर देते हैं, जिसे कि पीपल शुड नॉट ड्रिंक इट. कुछ ऐसी स्मेल डाल देते हैं जैसे कि वो पीने के लिए बहुत उसमें स्मेल आएगी, तो इसे डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल कहते हैं. उसमें डाइज होती है, कलर वो डाल दी, इतना वो इंटेंस कलर आ गया कि नोबडी विल ड्रिंक इट. तो ये समझ में आ गया, डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल इंपॉर्टेंट है. ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, नोट किया जाए, इसको भी नोट कर लो. अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर बता दूं कि अल्कोहल का बहुत यूज हो रहा है. अल्कोहल एज ए फ्यूल. देखो फ्यूचर फ्यूल में अल्कोहल का यूज हो रहा है. आप पेट्रोल का यूज करते हो एज ए फ्यूल, ठीक है, एंड एज यू आर सेइंग दीज आर फॉसिल फ्यूल्स, दे आर डिप्लीटिंग. पेट्रोल खत्म हो रहा है, तो अब नेक्स्ट जो है वो अल्कोहल को भी यूज कर सकते हैं एज ए फ्यूल. तो अल्कोहल कहाँ होता है? शुगर केन प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर्स ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी. शुगर केन प्लांट्स कौन से हैं? वो जो गन्ना होता है, आपने देखे हैं शुगर केन प्लांट्स. शुगर केन प्लांट्स, ठीक है. शुगर केन जूस कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर मोलासिस व्हिच इज फर्मेंटेड टू गिव एथेनॉल. तो शुगर इंडस्ट्रीज जो होती हैं वहां पर ये अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाता है. क्या उसमें शुगर केन जूस जो होता है उसे जब मोलासिस की जाती है, फर्मेंटेशन की जाती है, तो इथाइल अल्कोहल बन जाता है, तो एथेनॉल बन जाता है. इसे इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, कॉमन नाम CH3CH2OH. तो शुगर इंडस्ट्रीज के अंदर ये बनता है, ठीक है. सम कंट्रीज नाउ यूज अल्कोहल एज एन एडिटिव इन पेट्रोल. तो अल्कोहल को पेट्रोल के साथ में यूज किया जा रहा है एज ए फ्यूल, ठीक है. सिंस इट इज अ क्लीनर फ्यूल व्हिच गिव राइज टू ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये क्लीनर फ्यूल है. CH3CH2 इज ए क्लीनर फ्यूल. देखो पेट्रोल में कुछ पोल्यूटेंट्स होते हैं. क्या होते हैं? पोल्यूटेंट्स. एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर बन जाते हैं, तो यू नो दे कॉज पोल्यूशन. कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है. ये सारी चीजें बन रही हैं. पेट्रोल जो है उसके अंदर और भी कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, पोल्यूटेंट्स होते हैं. लेकिन एथेनॉल जो है ये क्लीनर फ्यूल है, क्योंकि ये जब ऑक्सीडाइज होगा, ये जब बर्न होगा, इसकी जब कंबस्शन होगी, तो मतलब ऑक्सीडेशन होगी, तो देन यू विल गिव ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑन बर्निंग. तो इसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जब ये बर्न कर जाएगा तो सिर्फ ये मिलेगा, ठीक है, ऑन बर्निंग इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. सो इसमें जो पोल्यूटेंट्स पेट्रोल में थे वो नहीं है, तो इसे क्या बोलते हैं? क्लीनर फ्यूल. तो अल्कोहल से कार चली है, आपको पता है, आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि पीपल आर यूजिंग अल्कोहल एज ए फ्यूल. पेट्रोल की जगह अल्कोहल का यूज किया. इट इज अ क्लीनर फ्यूल, इट कैन बी यूज्ड, क्योंकि ऑन कंबस्शन इट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ हीट विल बी लिबरेटेड. कंबस्शन करोगे तो बहुत सारी हीट निकलेगी और इस एनर्जी को हम यूज करते हैं. ये दिस एनर्जी वी विल यूज एज ए फ्यूल. तो अल्कोहल का फ्यूचर में क्या यूज है?
It is already used and it can be used as a fuel. अब सेकेंड कंपाउंड पर आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 कंपाउंड डिस्कस किए गए हैं आपकी बुक में, बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. नाउ वी आर कमिंग टू एथेनोइक एसिड. तो व्हाट इज द फार्मूला स्टूडेंट्स? क्या फार्मूला लिखा था मैंने? एथेनोइक 2 कार्बन, इथेन मीन 2 कार्बन. तो ये एक कार्बन है और दूसरा ये है, तो इसकी वैलेंसी लगा दी आपने 4 कर दी कार्बन की, तो क्या बन गया? CH3COOH. दिस इज द फार्मूला ऑफ एथेनोइक एसिड. इसे कॉमनली एसिटिक एसिड भी कहा जाता है. कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड. कॉमन नेम, दिस इज IUPAC नेम. ये कौन सा नेम है? IUPAC. तो IUPAC नेम और कॉमन नेम, इस तरह से ये 2 आपके सामने आ गए. इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड, बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है. इस ग्रुप का क्या नाम था स्टूडेंट्स? कार्बोक्सिलिक एसिड. एंड इसका सफिक्स क्या यूज किया था नोमेनक्लेचर में स्टूडेंट्स? ओइक एसिड. तो ये बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड वाटर इज कॉल्ड विनेगर. देखो आप विनेगर यूज करते हैं घर में, जल्दी बताइए. सिरके की बोतल यूज करते हैं, सलाद वगैरह में डालते हैं और भी कई चीजों में डालते हैं. सिरका, विनेगर करते हैं यूज. तो ये क्या होता है? 5 to 8% किसका सोल्यूशन? सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड. तो 5 to 8% जो सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड है उसे क्या बोलते हैं? विनेगर. सिरका जो आपके घरों में यूज होता है. तो ये कैसे लिए यूज होता है विनेगर? एज ए प्रिजर्वेटिव. ठीक है. इन पिकल्स, अचार जब बनाते हैं, सलाद्स में भी आप डालते हैं एज ए ड्रेसिंग इन सलाद्स ऊपर. The melting point of pure ethanoic acid, कितना melting point है इसका? 290 Kelvin, and hence it often freezes during winter in cold. तो इसका melting point आप देख रहे हैं स्टूडेंट, 290 Kelvin का मतलब क्या हो गया? 290 minus 273 कितना आया? 770 डिग्री सेल्सियस. तो विंटर में क्या हो जाएगा? ये फ्रीज हो जाएगा. तो विंटर में ये फ्रीज हो जाएगा. अगर टेम्परेचर 17 से कम हो गया तो ये फ्रीज हो जाएगा. ठीक है, मतलब सॉलिड बन जाएगा फिर. तो इसको फिर गिव राइज टू द नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड. इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड. व्हाई ग्लेशियल एसिटिक एसिड? बिकॉज इट विल फ्रीज इन द विंटर. व्हेन टेम्परेचर विल go below 17 डिग्री सेंटीग्रेड, इट विल फ्रीज. आपने देखा बहुत सारे सब्सटेंसेस विंटर में सॉलिड बन जाते हैं. कोकोनट ऑयल भी आपने देखा विंटर में सॉलिड बन जाता है. और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है अकॉर्डिंग? अगर ये 17 डिग्री पे मेल्ट होने वाला तो फिर ये लिक्विड है. अबव 17, बिलो 17, जब 10 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो ये सॉलिड बन गया. इसको बोलते हैं फिर ग्लेशियल एसिटिक एसिड. इसका नाम क्या बोला? ग्लेशियल एसिटिक एसिड. अब होगा क्या? एथेनोइक एसिड जो है ये कलरलेस लिक्विड है. सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस, लेट अस सी फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं स्टूडेंट. फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आया? इट इज ए कलरलेस लिक्विड विद पंजेंट विनेगर ऑर्डर एंड सॉवर टेस्ट. विनेगर सलाद में डालते हैं, अच्छा लगता है, सॉवर सा टेस्ट होता है. It dissolves sulfur, iodine, and many other organic compounds. It is corrosive in nature. It reacts with thionyl chloride to give acetyl chloride. It reacts with alcohols in the presence of sulfuric acid to form ester. ये एक टेस्ट भी होता है. तो आपने क्या किया? अल्कोहल प्लस
एसिटिक एसिड, तो ये क्या बनाता है? एस्टर्स। तो एस्टर्स हैव गॉट फ्रूटी स्मेल, इनकी फ्रूटी स्मेल होती है, फ्लेवर इनका फ्रूटी होता है एस्टर्स का, तो इससे टेस्ट भी हो जाता है फॉर अल्कोहल्स। तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालना पड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। Alcohol plus acetic acid in the presence of sulfuric acid form esters which have a fruity smell. तो फ्रूट जैसी स्मेल बनती है। अब there is an activity. What activity? The group of organic compounds called carboxylic acid are characterized by their acidic nature. देखो, they are acidic in nature. क्योंकि इनके पास ये वाला ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। However, unlike mineral acid like HCl, which are completely ionized carbon, but they are weaker acids than mineral acid. Mineral acids ये क्वेश्चन आया था, like HCl. HCl क्या है? ये strong acid. HCl is a strong acid because it is completely ionized. HCl में बहुत सारे हाइड्रोनियम आयंस बनते हैं. HCl is completely ionized. Therefore, is a strong acid. It will produce large concentration of hydronium ions. लेकिन ये partially ionized होते हैं. These are weak acids. They are partially ionized. लेस देन 5%. इनकी आयनाइजेशन बहुत कम होती है, 5% से भी कम होती है, तो ये वीकर एसिड्स हैं देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एक्टिविटी में क्या किया? टेक 1 मिलीलीटर ऑफ एथेनॉल एंड 1 मिलीलीटर ऑफ ग्लेशियर एसिडिक अलोंग विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वार्म इन वाटर बाथ फॉर एटलीस्ट फ्यू मिनट्स, पोर इनटू अ बीकर कंटेनिंग 20 एंड स्मेल द रिजल्टिंग मिक्सचर। तो क्या रिजल्ट मिलेगा? क्या बन जाएगा? व्हाट विल हैपन? आपके पास क्या है? CH3CH2OH एथेनॉल है, ठीक है, और एसिटिक एसिड है आपके पास, ठीक है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, और आपने क्या ऐड किया है? एसिड। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स? इसको थोड़ा वार्म कर दिया, तो ये क्या बनने वाला है? CH3, ठीक है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, OCH3। तो ये आपके पास बन गया स्टूडेंट्स CH3, ठीक है, CH3 यहाँ पे इसको ऐसे कर लो, थोड़ा सा चेंज कर लो, एसिड है और ये अल्कोहल है, तो आपके पास क्या बना? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको एस्टर बोलते हैं। एस्टर बन गया, और ये HOH और H मिलके क्या बन गए? वाटर, ठीक है, यहाँ से H आया और इसका OH वाटर। तो ये रिएक्शन हो गई, तो इसकी स्मेल क्या होगी? वो कह रहा है ना, स्मेल द रिजल्टिंग मिक्सचर। क्या? व्हाट स्मेल यू विल गेट? फ्रूटी स्मेल। So esters have got a fruity smell. So this reaction is called esterification. What is this reaction called? Esterification. So reactions of ethanoic acid. Let us see what are the reactions of ethanoic acid. These are important reaction. पहली बता रहा हूँ, esterification reaction. अभी भी हमने जो किया था वो esterification reaction ही थी. First reaction है. What happens? Esters are most commonly formed by reaction of acid and alcohol. Ethanoic acid reacts with absolute ethanol in the presence of acid catalyst to give ester. तो यहाँ पर this is my ethanoic acid. It reacts with ethanol in the presence of concentrated sulfuric acid, ठीक है, in the presence of few drops, and this forms ester, जो reaction मैंने अभी दिखाई है, और
एस्टर की स्मेल क्या होती है? स्वीट स्मेलिंग, ठीक है। स्वीट स्मेलिंग, स्वीट स्मेल जब बन जाएगी तो इसका मतलब एस्टर फॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशंस एंड एस्टर्स आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। परफ्यूम्स जो होते हैं उनकी अच्छी स्मेल होती है, यू नो अबाउट इट। इन द परफ्यूम्स एंड इन द फ्लेवरिंग एजेंट्स वी कैन यूज एस्टर्स because esters have fruity smell. So this reaction is called important. This reaction has been asked many times in the paper. Acid plus alcohol forms ester in the presence of concentrated sulfuric acid. एक और रिएक्शन आ गई, ये भी इंपॉर्टेंट है, सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट two reactions are given, very important. Sulfonification reaction of esters with sodium hydroxide. देखो ये एस्टर बन गया। इफ आई रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस विल गिव बैक अल्कोहल एंड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ये सोप्स ही होते हैं, इसमें दे यूज लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 कार्बन है, 17 कार्बन का जो बनता है एस्टर उसको भी यूज किया जाता है सोप्स में, तो यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ सोप। इसीलिए ही दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन। So this reaction is used for the preparation of soap. तो यहाँ पर आप देखिए कि ये मेरा एस्टर था, I am reacting this with सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अल्कोहल वापस मिल गया और ये मिला सोडियम एथेनोएट, तो ये सोप्स बन जाते हैं। Why this reaction? This reaction is called sulfonification reaction. Important for the exam students, note down. And another important reaction is a reaction with a base, because these are acidic in nature. If I will react with a base, what will happen? If I will react with a base, what will happen? Acids, when we react with base, student, base, what will happen? So ethanoic acid is a acid, but it is a weaker acid than mineral acid like HCl, etc. When they react with base, what will happen? You will get salt and water. तो यहाँ पर NaOH reacts with, NaOH क्या है? एक बेस है, strong base है, and this is an acid, weak acid है, this is a weak acid. So when a base and acid react, you know what will be formed? Salt and water. साल्ट क्या बनेगा? यहाँ पे CH3COONA और बचा क्या? OH और H बना के क्या बना? वाटर। तो फिर वही रिएक्शन हो गई, एसिड प्लस बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। But as you know, this is a weaker acid. This is a weaker acid than the mineral acid. तो ये जो सारी हैं, ये कौन सी रिएक्शन हमने बताई हैं, और बेस है। इसी तरह another important reaction with carbonates and hydrogen carbonates. तो कार्बोनेट्स क्या होते हैं? which contains CO3 2 minus, ये कार्बोनेट्स होते हैं, and HCO3 minus, इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये क्या होते हैं? कार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ इफ आई विल रिएक्ट विद एसिड, व्हाट विल हैपन? इनमें आपको दिख रहा है CO3 है, तो कौन सी गैस निकलने वाली है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी गैस निकलेगी CO3 से? टेल मी, इफ CO3 इज देयर और दिस इज आल्सो CO3, व्हिच गैस यू थिंक विल बी इवॉल्व्ड? बिकॉज इट इज ए, ये एसिड है, ठीक है, एसिड यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन? कौन सी गैस निकलने वाली है यहाँ से? CO2 ही बन सकती है, और तो कुछ है नहीं यहाँ। समझ में आया? इसमें पास कौन सी गैस है? CO2। तो यहाँ पे CO2 गैस बन सकती है और बनेगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया? रिएक्ट एथेनोइक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट। What is this gas is will be evolved? Carbon dioxide gas. React with sodium hydrogen carbonate, then you will get sodium acetate water and carbon dioxide gas. तो इन दोनों में देख रहे हैं कि if I will react with sodium carbonate or sodium hydrogen carbonate, what will happen? Ethanoic acid will liberate, क्या मिलेगा? Carbon dioxide gas. ये important है, and this can be used as a test for COH functional group.
एक टेस्ट हो गया फॉर COH फंक्शनल ग्रुप कि अगर मैंने कह दिया कि टेस्ट करो इसका CH3COH का, इसको टेस्ट करना है, क्या करोगे? यू विल add a pinch of sodium hydrogen carbonate. It is solid. What will happen? Carbon dioxide gas will be evolved. So there will be effervescence and evolution of CO2 gas. How you test the CO2 gas? इसको कैसे टेस्ट करते हैं, जल्दी से बताइए आपके पास, कैसे टेस्ट करोगे कार्बन डाइऑक्साइड को? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ विल यू टेस्ट CO2? पहले पढ़ा था टेस्ट, ये पेपर में भी आया फर्स्ट टर्म में, हाउ टू टेस्ट CO2, कैसे किया आपने? कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दैट? क्या बन जाएगा? लाइम वाटर फार्मूला यू नो, मिल्की, बोलो यस और नो, जल्दी बताओ. सही है, याद आ गया? कौन सा कंपाउंड बनता है? CaCO3S. तो ये when carbon dioxide gas is passed through lime water, students, you get milky color. तो मिल्की कलर किस चीज का होता है? कौन सा सब्सटेंस? CaCO3, व्हाइट कलर का सॉलिड होता है. बोलो यस और नो, जल्दी बताओ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. और फिर आएगी, यहां पर हमने शो किया है कि whenever, so how will you test carboxylic acid? Add sodium carbonate or sodium hydrogen carbonate, what will happen? Carbon dioxide gas will be what? Bubbles of CO2 will be there. Pass the gas through lime water, फिर क्या होगा? मिल्की. तो यहाँ पर on passing CO2 through lime water it turns milky. तो देख रहे हो ये मिल्की हो गया, ये लाइम वाटर है, दिस इज लाइम वाटर, ठीक है, और ये CO2 गैस है, ये बन गया कंपाउंड CaCO3. दिस कंपाउंड इज सॉलिड व्हाइट इन कलर, तो आपको मिल्कीनेस मिल जाती है, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की. बोलो समझ में आ गई ये रिएक्शन? टेल मी, वेरी इंपॉर्टेंट. तो what we have done, what is the takeaway? We have discussed two important compounds of the carbon, ethanol and ethanoic acid, and we have discussed the important physical and chemical properties of ethanol and ethanoic acid, from which question can be asked in the paper. I hope you understood this, and recorded videos will become available to you. You can share it with your friends, and then we will be discussing important questions. These two compounds are very important, and there will be 100% questions on them. We have discussed them in detail. Okay, bye bye. Then I will see you next time. ठीक है.